Hello, everyone, and welcome to Dr. Nanda's Hair Podcast, where we dive deep into beauty secrets with the best in the field. Now, today, I'm thrilled to be joined by Dr. Soni Nanda. She's a gold medalist MD in dermatology from Maulana Azad Medical College with over 20 years of practice, currently heading dermatology at Ojus Clinic and Dental Care in Delhi and Noida. Dr. Nanda is an expert in hair, scalp issues, laser treatments, and pediatric dermatology, and her work spans 50 plus publications and numerous national and international workshops as well. Dr. Nanda, thank you so much for joining us today. And as the monsoon season approaches, we are so eager to get your insights onto how to keep our hair healthy, vibrant, and the scalp safe through the rains. So let's dive in. Right. Thanks so much, Divya, for that wonderful introduction. Right. And so monsoons आ रहे हैं तो आपका biggest fear क्या है as a woman? Okay, okay. I think monsoons आते ही the first thing that I'm plagued with is hair fall. Yes. And every time I'm wondering कि क्या कुछ deficiency हो गई है or is it just बारिश and then you reading things कि अच्छा नहीं 100 गिरे तो ठीक है और 100 hair falling every day is all right and you are still confused कि हो क्यों रहा है सिर्फ बारिश ही है ठीक तो हो जाएगा and after a certain point in time इतना hair fall होने लगा that you are scared कि I hope it is only season so please tell us more about it. Right, right. So, monsoons is equivalent to hair fall. So, आपका monsoons जैसे start होता है जून जुलाई का season till September October आप hair fall expect कर सकते हो. So you are saying it's a natural thing to happen. Most of the times, yeah. See, कुछ underlying अगर आपके पहले thinning हो रही है and फिर रोज 100 निकल रहे हैं तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं 3-4 महीने में right? But some amount of hair fall during monsoons is not. Okay. So that is something that people should be expecting and do not lose hope. Do not get too scared. It is normal and natural to lose some hair during monsoon. But still tell us a little bit more about this. अब जैसे hair, of course, as you said, बाल तो गिरेंगे. But फिर भी गिरने में what are the things that we can take care of? So to begin with, let's talk about the hair washing routine. Right. उसमें हम क्या ध्यान रख सकते हैं हमारे? सो हेयर वॉशिंग की जो मैंने सबसे बड़ी मिथ देखी है इंडिया में वो ये है कि रोज बाल धोने से बाल खराब हो जाते हैं Yeah. सो आई थिंक एज वी वर ग्रोइंग अप हम हफ्ते में एक बार बाल धोते थे हाँ एक बार दो बार करेक्ट बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड आप जिम जाने लग गए हो आपको रोज पसीना आता है एनवायरनमेंट अब उतना अच्छा नहीं रहा है हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं सो आप हफ्ते में एक बार बाल धोने से तो नहीं चलेगा So, द हेयर वॉशिंग frequency कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल बट ऑन एन एवरेज 3 to 5 times a week. It's longer? Yes, that's the response which I get. And what about the Right. understanding? Because even I have this understanding कि the more you wash your hair, उतना scalp में से oil is removed and natural oil is very important. Right. Oiling तो हम लोग वैसे ही नहीं करते, but we will cover that later during the podcast. Right. But what about the natural oils? So, आपको ना you have to wash your hair to keep your scalp healthy. अब बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया पे बहुत है कि बाल आपको हफ्ते में एक बार धोना है Yeah. तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम सो एक्चुअली डैंड्रफ क्या है कि आपके स्कैल्प पे बिल्डअप हो रहा है बिकॉज आप वॉश इनफ नहीं कर रहे Acha, so the sebum or the oil buildup is happening in the scalp. यस तो इन दिस सीजन अब मानसून है इतना पसीना आ रहा है Yeah. आप इमेजिन करो अगर आप अपना मुंह रोज नहीं धोगे तो क्या होगा एंड सिर पे तो बाल भी है ऊपर सो जो पसीना है दैट इज ट्रैप्ड सो यू नीड टू कीप इट हेल्दी बट यस यू नीड टू यूज माइल्ड शैम्पूज Okay, so I think what we need to take care of is use mild shampoos because very rightly said हम लोग नहाते रोज हैं मुंह हम दिन में कम से कम 2 या 3 बार धो ही लेते हैं बट बेचारा हमारा scalp takes the brunt because we don't want to wash it as often. Tell us more about shampoos. कौन से टाइप के shampoos are the best for washing hair हाँ सो शैम्पू and especially for different hair types? राइट सो शैम्पू इज अगेन अ वेरी वेरी बिग मार्केट नाउ Yeah. बट अब जो भी शैम्पू करने से आपका पूरा बाथरूम झाग से भर जाता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है अच्छे से झाग बनी है लेदर बना है साफ हुआ है दैट्स एब्सोल्यूट नो Yeah. सो वो जो झाग बन रही है दैट इज अ कॉम्पोनेंट नोन एज SLS वो जिससे गराज का फ्लोर क्लियर किया जाता है
सो अगर बहुत ज़्यादा फ्रॉथ बन रही है देन दैट्स अ हार्श शैम्पू, वो आप रोज़ नहीं यूज़ कर सकते। अब रोज़ यूज़ करने के लिए सल्फेट फ्री शैम्पूज बहुत प्रमोट किए जा रहे हैं एंड दे आर गुड, बट हमारे जितने भी आयुर्वेदिक शैम्पूज है दे आर ऑल सल्फेट फ्री automatically, you know, so that's something that you can use, but वो कुछ केसेस में माइल्ड हो जाते हैं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, so that might not be enough, so you might need to alternate it with a shampoo which is appropriate for people who have dandruff या जिनका बहुत ऑयली स्कैल्प है। दूसरा, बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि ऑयल करने के शैम्पू करने के बाद मेरे बाल बहुत रफ हो जाते हैं। फीमेल्स का एक एज के बाद वैसे ही बाल फ्रिजी हो रहा है, तो बाल और फ्रिजी हो जाता है, तो वहाँ ना यू नीड माइल्डर शैम्पूज एंड यू कैन यूज अ कंडीशनर आफ्टर शैम्पू। जो हमारा ऑयल है दैट इज अ वेरी वेरी गुड कंडीशनर। आप हाफ एन आवर शैम्पू से पहले हल्का सा ऑयल लगाइए, नो मसाज। यही प्लीज, ये आप बहुत सारे टॉपिक्स टच करिए जिसके मुझे आना है बात के। Let's stick to the shampoo bit because these are very important subjects. Oiling is another, we can do a deep dive there. और काफ़ी सारे myths हैं हमारी society में which already exist about as far as the oiling goes. So we will come back to it. फिलहाल एक तो for all of you remember कि झाग ज़्यादा बनना is great only for advertisements. वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है। Be it soaps or shampoos, do not apply it to your bathroom and your private space. And again, going organic, going back to our Indian natural shampoos is what is advised by Dr. Nanda. That is one thing that can be done. And sulfate free करने के लिए हमें बहुत महंगे shampoos खरीदने की ज़रूरत नहीं है। So this is a point which I want to make here, Divya, because shampoo is not a one-time investment. एक मोरक्कन ऑयल या एक कोई 5000 का शैम्पू ले लिया एंड देन यू ट्रीट इट लाइक गोल्ड, थोड़ा लगाएंगे, मतलब 2-3 महीने तो चलना चाहिए। सो यू शुड बाय अ शैम्पू जो आपका जो माइंडसेट है कि मुझे शैम्पू पे इतना स्पेंड करना है, बट आप कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहे हो, यू नो, कि कम खरीदना है या कुछ। सो बाय अ शैम्पू विच सूट्स यू, विच डज नॉट लैदर टू मच। यू मस्ट शैम्पू 3 to 5 times a week। जो लोग बहुत फिटनेस में, उनका 7 times भी हो सकता है, या जिनको बहुत डैंड्रफ है। जिन लोग को कर्ली हेयर है उनको प्रॉब्लम आती है, एंड उनके लिए अभी भी हमारे पास कोई फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं है, बट उसमें आप पहले भी कंडीशनर लगाओ एंड आप बाद में भी कंडीशनर। सो आई वुड लव टू जंप इनटू दिस। कंडीशनर कितना ज़रूरी है? Tell us for various hair types, because there are few people who don't like to put the conditioner. They say कि अरे हमारे बाल बहुत limp हो जाते हैं. For a person like me, I cannot operate without using a conditioner. So please give us your knowledge and share it. So see, conditioners are completely dependent on कि आपको कैसा लगता। It's not a medical need per se. जैसे आपके हेयर में चाहिए है, मेरे हेयर में नहीं चाहिए है। आपको हर शैम्पू के बाद कंडीशनर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कंडीशनर लगाने का एक तरीका होता है। आप अपने जब आपने बाल धोए उसके बाद आप एक्सेस वाटर निकाल दो, एंड जो आपका वेट बाल है उस पर कंडीशनर लगा के लेट इट बी ऑन फॉर एटलीस्ट 3 to 5 minutes। यू नो, आप बस वो ड्रिपिंग वेट पानी पे आपने कंडीशनर लगा लिया और धो दिया, दैट डजंट हेल्प। आप वंस इन अ वीक कंडीशनिंग कर सकते हो। जिन लोग के बहुत फ्रिजी बाल है या जिनके कर्ली बाल है, वो लोग हेयर मास्क भी यूज करते हैं। सो यू कैन पिक कि आपको क्या सूट करता है और आपने क्या फ्रीक्वेंसी नीडेड है। But for both you are saying कि wetting the hair is very important. So a good idea might be to carry your phones inside. 2 गाने लगाओ, 2 गाने जब तक पूरे खत्म नहीं होते हैं, let the conditioner stay, get soaked in properly, and then wash it off. Exactly, because the conditioner needs to stay on your hair for some time and not dripping wet hair. Excess पानी आपने निकाल दिया and then you put conditioner, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो वी आर टेलिंग यू कि आप रोज शैम्पू करो, आप अगर रोज कंडीशनर भी लगाओगे तो रोज ऑफिस लेट पहुंचोगे, अब फिर आप बोलोगे डॉक्टर ने बोला था ये करना है, so that will not work. So you decide the frequency of conditioner, but yes, once a week or twice a week depending on your hair type. Okay, I have a question here. I was once working with one of India's top models, and this person specifically told me कि जिस दिन मुझे शैम्पू नहीं करना होता है, I just condition the hair. Do you think there is any merit in that? So see, to each his own. Okay.
आपको वैसे अच्छा लग रहा है वैसे कर लो, बिकॉज कंडीशनर से बाल थोड़े सेंट तो हो जाते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी आ जाती है, सॉफ्ट भी आ जाते हैं डायरेक्टली। एंड बहुत लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट तो रहता ही है कि थोड़ा एडी शैम्पू कि शैम्पू लगा रहे हैं तो कहीं मेरा बाल खराब जाए। मोस्टली लोग जिनके बाल फॉल हो रहे होते हैं, फर्स्ट थिंग दे डू इज अपनी शैम्पू की फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। हाँ, करेक्ट। We've correlated with that thought. हाँ, सो दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से डज दैट लीड टू एक्स्ट्रा हेयर फॉल? So I already answered, basically शैम्पू करने से अगर जेंटल शैम्पू है, so आपके बाल शैम्पू करने से जो बालों में ड्राइनेस रफनेस आती है ना, Right. वो कम आएगी। आप अगर शैम्पू से फॉल कर रहे होंगे फिर तो आप तेज हवा में जाओगे तो भी निकल जाएंगे। हेयर आर फर्मली एम्बेडेड इन योर स्कैल्प, राइट? बट हमारे हेयर ना साइकिल में ग्रो करता है। And pulling out hair is a kind of torture. Yes. You cannot do that easily. आप खींच के देखो, आप अपने आप को थोड़े ना ऐसे मारोगे। लेकिन हमारे ना स्कैल्प में कुछ बाल डेड पड़ा होता है, तो जब आप शैम्पू करते हो वो उस टाइम निकल जाता है। जो लोग हफ्ते में एक बार शैम्पू करते हैं उनकी जनरली कंप्लेंट होती है मेरे घर में पूरे बाल बिखरे रहते हैं, मैं सो के उठती हूँ मेरे पिलो पे बाल होते हैं। जो लोग शैम्पू करते हैं उनको सुबह ही सारे नाली पे बाल दिख जाते हैं, एंड दैट एड्स टू देयर एंजाइटी। बट शैम्पूइंग से हेयर फॉल बढ़ता नहीं है। Okay, one more question here. Now, I've seen, I don't know, it's my belief, tell me if it's right or wrong, a lot of Indian men, this is a habit because of course the hair are short, then बाल गीले तो रोज़ होते ही हैं, and a lot of them believe कि हाँ हमने पानी से धो लिया है, that is good enough, हमको शैम्पू कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, maybe once a week. How much merit is there in that thought? से अगर आपका बाल गंदा होता है, जैसे आपका अगर स्कैल्प ऑयली है या आप कुछ भी फिटनेस करते हो जिसमें आपको पसीना आ रहा है, या फिर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जैसे आप इंडिया के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, तो फिर आप अगर बाल जहाँ कर रहे हो Quality is horrendous. Sorry, we are talking from Delhi right now, and all of us know कि air quality keeps on dipping, especially in those particular seasons. It becomes really bad. आप देखो ना आपके पूरा घर बंद होता है लेकिन आपके पंखे में एक परत जमती है मिट्टी की, इफ यू डोंट क्लीन इट एवरी वीक, सो हेयर को क्यों मिट्टी छोड़ेगी, यहाँ पे भी आके चिपकेगा। सो अगर आप बाल गीला कर ही रहे हो तो आप शैम्पू या साबुन भी लगा सकते हो, दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेन हैव लेस हेयर तो उनका चल जाता है। विमेन नीड हेयर को एंड राइट आंसर, सॉरी शॉर्ट है। सो अगर आप गीला कर रहे हैं तो आइडियली आपको उसे साफ भी कर लेना चाहिए। Right. Asa, another big thing people kind of struggle with, ठंडा पानी या गर्म पानी बाल धोने के लिए? Because I have this thing, मैं सर्दियों में भी I'll go to the salon, I'll tell them नहीं ठंडा पानी यूज़ करिए, because I was told कि at some point in time कि गर्म is bad, तो बाहर ठंड होगी, but then I'll be like नहीं बाल धोने के लिए ठंडा पानी है। सी आप बहुत गर्म पानी मत लो, जैसे कुछ लोग तो रोज ही स्टीम सोना करते हैं अपने बारे में नहाते टाइम, वो मत करो, बिकॉज वो आपके बाल को ड्राई करेगा, वो आपके बालों का नेचुरल ऑयल जरूर निकालेगा। तो एम्बिएंट टेम्परेचर ठंडे पानी से बाल धो के कोल्ड करवा लोगे, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगी, बाल टूटेगा। सो इट्स लाइक यू जस्ट नीड अ हेल्दी बॉडी, एंड जो आपकी बॉडी में आपको कंफर्टेबल लगे। बट कुछ लोगों को बहुत तेज गर्म पानी से नहाने की आदत होती है, हेयर के लिए दैट वुड नॉट गो वेल, इट वुड जस्ट डिहाइड्रेट योर हेयर। Absolutely. Okay, now going further here, a lot of people are getting so particular, and also I think पानी बहुत अलग अलग है इंडिया के, काफ़ी अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट्स में पानी अलग है। कहीं रेन वाटर आता है, कहीं बोरिंग का पानी है, कहीं रिवर्स आते हैं। नोएडा का पानी इज़ नॉट सपोज टू बी ग्रेट, इट्स सपोज टू बी वेरी हार्ड वाटर, एंड इवन माई मदर हैज़ दिस बिलीफ नहीं तुम आरू का पानी लेकर आओ, I will. So how, and there are people I know जो mineral water मंगाते हैं just for their hair wash. How good is that thought process? See, इसमें ना अभी we don't have too much scientific evidence, and you will get different opinions from different doctors. There are some doctors who endorse कि ये वाला पानी आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन my thought here is, it might be a controversial thought, but my thought here is कि पानी कितनी देर आपके बाल पे रहना है। जैसे आपकी पाइप्स में जल लगता है क्योंकि पाइप्स में पानी बहुत देर रहता है, सो पानी कितनी देर रहेगा। अब अगर आपने प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया कि आप एक बाल्टी उठा के पहले पानी ला रहे हो, तो एक तो स्लिप डिस्क का बहुत हाई चांस है,
यू नो आई एम वेरी स्कैर्ड फॉर ऑल योर बैक्स। दूसरा, फिर आप शैम्पू करना इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिया कि आप कैसे करोगे जी। सो इतना एक्सट्रीम की मिनरल वाटर, आरओ वाटर, आई थिंक दैट्स टेकिंग इट टू फार। मे बी यू कैन पुट अ वाटर सॉफ्टनर इन योर शावर्स सो दैट वो एक, मतलब आप एक एक्स्ट्रा प्रोसेस रोज नहीं कर रहे हो just to shampoo your hair. Okay, so it's not that necessary also कि you need to get And crazy. again, all this is going to lead to a you know, आपका टेक्सचर हेयर का थोड़ा खराब हो जाएगा, फॉल नहीं करवाएगा ये, टेक्सचर थोड़ा सा रफ होने लग जाएगा। सो अगर आपको वैसा लगता है आप देख सकते हो, बट बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है कि दिस वुड बी द रीजन फॉर स्पॉइलिंग योर हेयर। All right. Great. I think we've discussed hair wash in detail. Now let's move to another very important topic, and that is all about dryers. Now hair drying has become, I think abroad तो पहले भी होता था because of their weather, but in India it is not really a norm. But आजकल with a lot of people going to offices, it's become very regular to blow dry hair on a very regular daily basis also for some. Right. What is your viewpoint on hair drying and using hair dryers? सो सी, पहले अगर 2 साल पहले आप ये मेरे से क्वेश्चन पूछते तो आई वुड हैव सेड नो टू हेयर ड्रायर। बट नाउ पीपल से आप बोलते हो बाल भी रोज धो, फिर हम गीले बालों में बाहर निकलेंगे, फिर हम एक तो मिट्टी सारी आपकी इकट्ठी होगी एंड देन यू टेंड टू कैच कोल्ड। सो आई जस्ट थॉट कि फिर क्या करना चाहिए। सो आप डोंट यूज द हॉट मोड, यूज द कोल्ड मोड एंड डू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड try not to do it every day. Okay. So here we've covered both the things. Hair drying, yes, it is good, especially if you're washing your hair daily. Try to do it from a distance. Do not be very hot. I would not say it is good. Yeah. You know, so if you can avoid it, you avoid it. Okay. But if you have to do it, Yeah. then use the Then cold keep mode. these things in mind. Do it from a distance. All right. So another very important thing is कि आजकल जैसे घर में हमने blow dry करना चालू कर ही दिया, and I'm sure most of our audience will also agree that since we are blow drying it in the house only, we have also started keeping these hair protection serums and sprays. I think that all of us do that. कि पहले आपने बाल धोए and that's how it's recommended. आप बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपना hair protection serum या spray लगाया and then you start the drying process. What is your idea on that? See, these are all moisturizers. तो बेसिकली ड्रायर्स आपके हेयर का ऑयल निकाल रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स उनको वापस थोड़ा मॉइस्चराइज कर रहे हैं। सो इफ यू हैव टू डू ब्लो ड्राइंग, it's a good idea to do this simultaneously. Yeah. People do hair pressing also. Of course. That is एक स्टेप आगे देन ब्लो ड्राई, और ज़्यादा आपके हेयर को हीट दे रहे हैं। एंड हेयर को अगर आप बहुत हीट दोगे तो आप उसको डैमेज डेफिनेटली करते हैं। Absolutely. So even as an anchor, I face this a lot. और कितनी बारी even the hair stylists who come to do my hair, अगर मैं, because कई बारी आप जल्दी में होते तो I tell them कि हाँ आयन कर दीजिए. It also stays for longer. They are like कि मैम आप आयन मत करवाइए, as far as possible blow dry करके let's use it and avoid ironing as much as possible. Very good to know that people in the industry are aware. Yeah. So that's like really good. Yeah. You know, but see, heat है, ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। Correct. कि हीट है तो आप अपने बाल को खराब थोड़ा तो कर ही रहे हो, पर मोस्टली लोग ना ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं कि आज तो अच्छी दिख रही हो ना, जब बाल खराब होके तब जो करना होगा देख। करेक्ट। और बाद में चले जाएंगे हम we'll visit a salon, हम अपना hair spa has to be done, बस that will take care of everything, but वो जो आपको exploit करना है बालों को वो कर लो। करोगे तो फिर हमें लुक ही अच्छी नहीं आती। Absolutely. क्राउनिंग ग्लोरी। हाँ, so that. अच्छा, another I have a very interesting question, and even I have followed this for the longest time. There is always that debate of कि air dry करना चाहिए या blow dry करना चाहिए. सिमिलर। सो आपको जो सूट कर रहा है आप करना, आपको लगता है कि आपका हेयर बहुत डैमेज होने लग रहा है तो आप ये एप्लीकेशंस तो कर ही सकते हो जी, बट आप ओरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो जिस पे वी विल कम टू दैट लेटर, बिकॉज हेयर इज बेसिकली योर इंटरनल हेयर। राइट। डॉक्टर नंदा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम सब ने बहुत मूवीज़ में देखा है और बहुत ही रोमांटिक लगता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंडियन थिंग कि बाल धो के हीरोइन निकली और बालों में टॉवल लिपटी हुई है, फिर गए आप छत पे और आपने बाल झाड़े, एंड यू नो it's literally the most romantic moment कि वो बाल झाड़े उसमें से their hair gets sprayed.
So what do you think about that? ये बालों को टॉवल से झाड़ के सुखाना, it can be called I don't know if you call it rough treatment or if you think कि नहीं भाई hair is very strong चल जाएगा. हेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अगर आपके पास ये लग्जरी है कि आप छत पे जाके धूप में सुखा सकते हो, हाँ. प्लीज डू इट. Okay. यू नो दैट्स द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ डूइंग इट. Yeah. एंड आप जब वो टॉवल में करोगे वो दिखने में लगता होगा कि बहुत ऐसे रब किया जा रहा है. जी. आपके अपने बाल हैं, यू विल बी वेरी जेंटल. थोड़ा सा बाल खिंच जाता है रहेगा उच तरह से. अपने बाल कर रहे हो आप बहुत प्यार से करोगे, और अगर आप धूप में सुखा सकते हो, नथिंग टू पिक दैट. Absolutely, and I think I personally अभी ये कैमरा ऐसा नहीं होता, वो भी not shooting, I would have just shown it to you. But even when I'm not using the towel, you just bend your head down and वो अपना you do that left right sway, up and down sway, कि वो naturally जितना पानी झड़ सके झड़ जाए. But drying is very important. I also remember seeing a Japanese interview I had seen once. And there they had very specifically said कि dry करना is very important before you step out. यस. So and they were saying कि जो हम लोग करते हैं कि हाँ थोड़ा एयर ड्राई हो गया फिर निकल गए, या पूरा ड्राई बिना करे हम निकल गए, that's not a very great thing for the hair. यस, बिकॉज आप गीले बालों में जाओगे तो एक तो बाहर जो भी डस्ट वगैरह वो चिपकेगा. जी हाँ. दूसरा, चांसेस दैट यू विल कैच कोल्ड आर प्रीटी हाई. Yeah. एंड फिर आपके पूरे दिन बाल सेट भी नहीं होंगे, जो प्रैक्टिकल इशू इसमें आपको आएगा. करें तो ये ड्राई तो आपको करना ही पड़ेगा. Right. Okay, now I think we've spoken enough about drying the hair. Let's move on to hair dyes. Now all of us पहले ज़माने की बात होती थी जब बाल ग्रे हुए. आई थिंक हम लोगों ने देखा था our mothers at that point in time used to use मेहंदी and everything. पर मेहंदी के दिन मुझे लगता है are long gone. Yes. Everybody's moved majorly everybody is moved towards hair dyes. And the worrisome bit is that not only the elders who have grey hair are doing it, even kids are out there and there's so much of variety, why not? Salt and pepper look. हाँ, salt and pepper भी बात, even the younger kids, even the young people, the girls and boys, they want to color their hair. People who are young, they are making their hair grey. Yeah, true. And people who are old, they are making their hair black. Absolutely. And I'm equally guilty. There has been a time when I have gone and I have told the salon person, make my hair blonde. और मैं blonde करके बाल घूमी हूँ. So and I think all of us have done that at some point or the other. How good or bad do you think this entire trend is? So एक तो दिव्या जो what you said ना कि the days of मेहंदी are long gone. Yeah. I think they are coming back. Yes. Because इतना डाई एक्सप्लॉइट हो गया है अब कि अब डाई से हम एलर्जीज बहुत कॉमनली देख रहे हैं. Okay. सो से अगर आपका बाल हेल्दी है और आपको हेयर डाई करने के बाद स्कैल्प में कोई इरिटेशन नहीं होती, तो आप हेयर डाई कर सकते हो. Okay. लेकिन मोस्टली लोग ना अब इस कंप्लेंट के साथ आते हैं जो ये वन ऑड आपने जाके अपने आप को ब्लॉन्ड करा लिया या ग्रे लुक कर लिया. सो दिस इज व्हेन यू आर प्रीटी यंग, योर बॉडी इज इन बेस्ट शेप, हेयर आर हेल्दी. But let me ask you right now, does it make the hair weak? इट मेक्स द हेयर वीक, बट उस टाइम पे हमारे हेयर का रीग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है. ज़्यादा होता है, right? तो थोड़ी देर वीक होगा, थोड़ी देर आपको फॉल होगी, आप अपनी डाइट वगैरह अच्छी रखोगे एंड फिर आपका हेयर अच्छा हो जाएगा. अब हेयर डाइज के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या आती है, जो ग्रेइंग के लिए हेयर डाइज यूज की जाए, ठीक है, तो मेजॉरिटी लोगों का दे विल कम टू अस विद द कंप्लेंट कि मेरे स्कैल्प में बहुत इचिंग होती हो. True. राइट, बट द मोमेंट यू से दैट हेयर डाई कुड कॉज इट, नहीं वो तो मैं सालों से लगाती हूँ. So here I want to add a small question. What about ammonia free hair dyes? Because every salon you go to, they're like, हाँ ammonia free है, आप चिंता मत करिए, उतर भी जल्दी जाती है थोड़ा, and it is very safe. How is that idea of very safe? नो. सो डाई में जो कंपोनेंट प्रॉब्लम करता है दैट इज PPD, Okay. पैराफिनाइलिन डाइअलीन, Okay. राइट. एंड देयर इज नो कमर्शियल डाई जो PPD के बिना बन सकती है. Okay. So ammonia free जो हम बोलते हैं उसका इतना बड़ा रोल है नहीं. बिना बात ही उसको विलेन बना के हटा दिया है. मतलब उसको हटाना इजी है और हटा दिया अच्छा है, बिकॉज अमोनिया भी प्रॉब्लम करता है. Okay. लेकिन बेसिक जो आपको प्रॉब्लम आती है दैट इज PPD. All right. एंड आप PPD फ्री डाई बना ही नहीं सकते हो बिकॉज वो फिर हर वॉश में निकल जाएगी. और इमेजिन आपने सैलून में जाके डाई करवाई और आपकी एक ही दिन में निकल गई, तो यू विल गो बैक एंड यू विल टेल देम, ओ गॉड व्हाट्स दिस. Correct. यू नो आई स्पेंड अ बॉम्ब. सो अगर आप हेयर डाई करते हो एंड आपको सिर में खारिश रहती है, Yeah. तो चाहे आपने हेयर डाई अभी शुरू की है या आप हेयर डाई सालों से कर रहे हो,
इट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि आपको हेयर डाई सूट नहीं कर, Right. यू नो. अब द मोमेंट यू टेल समबडी कि अब आप हेयर डाई नहीं कर सकते, इट्स लाइक डेथ सेंटेंस. मेरी तो सोशल लाइफ ही खत्म हो जाएगी. एंड एक्चुअली अगर आपने एक बार हेयर डाई शुरू कर दी Right. तो बाल पूरा ग्रे होने में ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लग जाता है. उस टाइम वो छोटे छोटे से ग्रे बाल आते हैं एंड यू ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट लुकिंग सो एज्ड. जब आप मिरर में देखते हो आपको शक्ल अच्छी नहीं लगती. एंड आप कहीं भी बाहर जाओगे, And if you've associated the dark hair with your personality, तो I think खुद को accept करना is another journey altogether with the grey hair and to walk out with that much confidence. Yeah. Even with the grey hair, because as you said, even my mother has that issue with dyeing. She gets little boils all over her head. Yes. So she has stopped dyeing. या So one is not dying, one does not want to move out very soon. Then you are waiting for those special occasions. कि अच्छा मैं दूर दूर से कर लूँगी without touching the scalp, but you're still not feeling great. राइट. सो सी, एक तो आपकी सेल्फ जर्नी, दूसरा जैसे आप बाहर जाओगे 4 लोग पूछेंगे वो क्या हो गया जी. बिकॉज ग्रे हेयर हमारी सोसाइटी में इज एसोसिएटेड विद ओल्ड एज, Yes. यू नो. है इतनी देर आपने नहीं किया. बट द प्रॉब्लम हियर इज अगर आपको नहीं सूट कर रहा एंड आप कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो आपकी मदर को अभी ऑयल्स आते हैं Right. या फिर कुछ लोगों को स्कैल्प में इचिंग होती है, दिस कैन बी वेरी डेंजरस. Yeah. आपको कोई एक चीज सूट नहीं कर दी, आप उसको लगाते जा रहे हो. Yeah. आपने हेयर डाई बालों में लगाई तो वो आपके बालों में मिनिमम 4 वीक्स तक रहेगी. जी हाँ. तो दैट्स अ एलर्जन व्हिच इज देयर. Yeah. सो आपको ना बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है. And it's not कि आपने वॉश करा और निकल गए. नहीं निकलती. अगर ये निकलेगी तो बाल भी काले नहीं रहेंगे, यू नो. सो इट कैन गेट रियली सीरियस. एंड आप इसमें देखोगे कि इवन हॉस्पिटल एडमिशंस भी हो जाती हैं. सो प्लीज डोंट टेक दिस लाइटली. अगर आपको हेयर डाई से एंड हेयर डाई में जो पीपीडी होता है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट बहुत कम होता है. तो शुरू में वो ठीक चलेगा, कुछ देर के बाद पहले इचिंग होनी शुरू होगी, फिर कुछ लोगों को फेस पे ब्लैकनेस आनी शुरू होती है, कुछ लोगों को आईज पे स्वेलिंग आनी शुरू होती है, कुछ लोगों के कानों में एक्जिमा होना शुरू होता है. बट यू कीप ऑन इग्नोरिंग एवरीथिंग बिकॉज यू नो देयर इज नो लाइफ विदाउट अ हेयर डाई. But this is where मेहंदी comes back. So now you have some organic options. आपको खुद से देखने पड़ेंगे कि आपको क्या सूट करता है. While I completely agree, मेहंदी का वो गोल्डन ऑरेंज सा कलर अच्छा नहीं लगता, तो अब लोग उसके साथ इंडिगो मिक्स करते हैं. एंड कुछ कुछ और हमारे पुराने वो रीखा शिखा का बिल्कुल बिल्कुल. लोया की कढ़ाई, हाँ. everything is coming back. Yeah. Everything should come back. All right. यू नो. सो इफ यू कैन सी कि कोई चीज आपको नहीं सूट कर रही और आप उसको लगाते जा रहे हो, हाँ. then you are just inviting trouble. I think one thing which is to be taken care of by all of you who are watching and tell everybody who you know, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है आपके स्किन पे डायरेक्टली एंड यू कैन फील इट, वेदर यू सी इट और नॉट, यू कैन फील इट, गो टू योर डर्मैट, show your scalp or face or whatever to the doctor, find out what the reason is, and definitely stop using that thing right there and then. Yes. Doctor, tell us, after dyes, what kind of aftercare can a regular person do? सो डाई जिसको एलर्जी नहीं होती उसका भी डाई से हेयर बहुत रफ हो जाता है. सो जनरली डाई के साथ ना यू गेट दोस कंडीशनर्स, द स्पेशल कंडीशनर. Correct. प्लीज यूज द फुल किट. ऐसा नहीं कि जल्दी है तो सिर्फ डाई कर ली और कंडीशनर वगैरह नहीं यूज किया, बिकॉज डाई से बाल थोड़े से रफ शुरू हो जाते हैं. हो जाते हैं. Okay, now coming back to teenagers, and it's become a big trend. We see it online also. Different colors आ रहे हैं. People are going for makeovers, boys, girls, everybody. How good is this trend for teenagers to be using hair dye? And this, should they use it or not, or should they wait for their time to come till it is like really unavoidable and then move to the dyes? See, ideally they should wait, Yeah. but given the current scenario they would not. Yeah. Right? So there are so many things which they should not be doing, but आप सब कुछ तो मना नहीं कर सकते. So at least बहुत frequent नहीं कराओ. हेयर का ब्लीच जो आप करते हो, अब जब टीनेजर्स करवाते हैं ना, तो आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसमें कलर है, वो वाइट नहीं है, तो हेयर को पहले ब्लीच करना पड़ेगा और फिर ही उस पर आप कोई और कलर चढ़ा सकते हो. सो उस प्रोसेस में आपका हेयर काफ़ी डैमेज होता है. तो जिन लोगों का हेयर तो पहले से हेल्दी है, यूजुअली 1-2 बार आप कलर करवाओगे, आपका हेयर सह लेगा उसके, मतलब थोड़ी देर खराब होगा, देन इट कम्स बैक. बट अगर आपका डैमेज हो जाता है, having done a few things, I experimented with my hair. I remember, doctor, when I did these big makeovers,
my hair had become so bad, and of course there is so much of money that you spend in after hair care also. Yes. Literally मुझे पूरी लेंथ कटवानी पड़ी थी after a good time went by because those hair are damaged beyond repair. दिव्या, आई हैव रियलाइज कि अब ना आइडियल सिनेरियोज नहीं है जी, पिज्जा अच्छा नहीं है पर खाएंगे तो ना, सो नो इट्स लाइक आइडियली तो यस, कुछ देर पहले तक आई वुड से नो टू एवरीथिंग, हेयर डाई नहीं करना, ब्लो नहीं करना, बस धोना है, बस बांध के जाना है. एंड हमारी जनरेशन सुन लेती थी, अब पेरेंट्स वुड टेल अस नो, तो मतलब नो, अब डिस्कशन नहीं होगा, बट आर किड्स विल नॉट डू लिसन. इफ यू यार हमारी जनरेशन भी ये सब कर रही है. नहीं, भाई जब जब टीनेजर्स करते हैं तो हमें ज्यादा दिखता है. Correct. यू नो पीपल आर रोमिंग अराउंड विद ऑल काइंड्स ऑफ हेयर. सो पता तो सबको ही है कि उससे बाल खराब हो. हाँ जी, सो अगर वो मानेंगे ठीक है, बट नहीं, कम चांस है. आप कोरियन सीरियल्स देखो, सबने बाल कलर कराए हैं, तो हमारा टीनेजर कैसे नहीं कराया, यू नो. and that's happening they are getting. Yeah, tell me something, if we talk about the natural dyes, so abhi aapne baat kari, you spoke about henna. What are the other options that are available for a regular person who's open to going to these natural hair dyeing options? सो ये ना यू विल नीड टू जस्ट लुक अप. हमारे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑप्शंस है एंड दे आर क्वाइट गुड. आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी मेनी ऑफ माई पेशेंट्स हु कम एंड टेल मी कि वो डाई नहीं लगा रहे हैं एंड दे एंड अप हैविंग वेरी नेचुरल हेयर. यू नो, सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, स्पेशली हमारे आयुर्वेदा से. और अगर आप अपने घर के बड़ों से पूछोगे तो वो डेफिनेटली आपको बता सकेंगे. जैसे कॉफ़ी डाल लेते हैं मेहंदी में, एंड देन रीठा है, शिकाकाई है, पीपल कम अप विद दीज ऑल दीज मिक्सचर्स. Correct. सो एंड योर इंटरनेट इज बजिंग विद ऑल दिस. बट ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी बिकॉज हमारे पास इसकी बहुत साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं. बट आई हैव सीन पीपल यूज दीज थिंग्स वेरी सेफली, very beautifully, I must say. Yeah. And since it's available, we should do it. You know, absolutely. We are the where Ayurveda started. Absolutely. So yeah, I guess that could make sense. So there is so much of knowledge in our culture itself. So and this being a podcast, we are not really promoting any brands here. But as Dr. Soni Nanda told us, please go use your Google search for options which are natural, and as she just mentioned, there are a lot of natural options also which look lovely, because many a times I see that people who are really dyeing their hair black, वो देख के ही अलग से, even for men देख के अलग से, it's a weird black or a weird, because not every place is doing a great job as well. So rather than that, use natural options and it will look nicer as well. And Divya, once we're talking about men, I would like to make a point. बहुत सारे लोग अपने मुस्टैश और बियर्ड डाई करते हैं. बिल्कुल. पर हमारी फेशियल स्किन इज वेरी सेंसिटिव. स्कैल्प फिर भी थिक होता है. Right. That's something which we should completely avoid. Okay, now that is a big thing, and but I think here na thoda number one, it is getting more in fashion for men to have salt and pepper hair, salt and pepper gray. It's supposed to be very hot. Arre. But at the same time, I think for women, it's still a challenge to come there, and where we can look at a woman who's coming with, it is becoming, there are few people who are breaking these norms and who are carrying their grays beautifully. Yes. But I think more and more women, as time goes by, I'll try it eventually one day. We should try bringing the salt and pepper back for women as well, and be confident about it. And I'm sure we'll carry it off lovely. Yes. Tell me something, hair dye और hair fall के बीच में भी कुछ connection है क्या? हेयर डाई से ना आपका बाल कुछ बहुत रफ हो जाता है. एंड फिर ऑब्वियसली जब बाल बहुत रफ हो जाएगा, ईयर्स ऑफ यूज है, Yeah. तो इट कैन ऐड टू योर एग्जिस्टिंग हेयर फॉल. इट कैन नॉट बी द प्राइमरी कॉज though. Okay. Okay, so now let's talk about yet another very important thing, and which has really hit the markets in a very big way for the last couple of years, and that is hair masks. Now, hair mask का purpose क्या होता है? Let us talk about that. कंडीशनर से हेयर मास्क कैसे अलग होते हैं? कोई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिससे हमें हेयर मास्क अकॉर्डिंगली यूज करने चाहिए? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस. If your hair mask is just a means of deep conditioning. ओके. आप वंस इन अ वीक कर सकते हो. आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, बट इट्स नॉट अ एसेंशियल पार्ट ऑफ योर हेयर केयर. ओके. नो, पीपल हु हैव कर्ली हेयर, ड्राई फ्रिजी है, उनकी नीड ज़्यादा होगी. ओके. एंड एनी फ्रीक्वेंसी? One of it's depending on your hair requirement. Yes. ठीक है. Also tell us, all of us, I think हमारी generation has grown up on DIY.
तो हम लोग घर में वी हैव सीन आवर मदर्स प्रिपेयरिंग, अच्छा चलो अंडा लाओ, दही लाओ, तेल लाओ, लेट्स मिक्स एक्स वाई जी थिंग्स अप एंड लेट्स मेक दोज DIYs। अरे इसमें बनाना भी डालना चाहिए, ये ऐसे ये वैसे, डिपेंडिंग अपॉन द हेयर टाइप्स। बट how is that good vis-a-vis all these store-bought hair masks that we have these days? See, the store bought hair masks are easier to get. टाई कम चाहिए. अगर आप खुद कर सकते हो तो वो तो हमेशा बेस्ट होता है. Right. Because you will customize it. Do you think they're effective as well? हाँ, so see, you will customize it. आपको अगर अच्छे से बनाना आता है जी हाँ, तो they will work. ऐसा नहीं है कि मैंने दही लगाया मैं खुद ही खुश हो गया, हाँ मैंने कुछ पोषण दिया, बट इन रियलिटी नथिंग इज बीइंग हेल्प्ड। Which is fine. आपको खुद ही खुश मिला हेयर मास्क से. नो ऑब्जेक्टिव अचीव. उसका कोई आप साइंटिफिक कुछ नहीं कर रहे हैं. आपको अपनी फील्ड से खुश होना है. आप दही लगाने खुश हो रहे हैं. अच्छा, बट there's you're not saying कि store bought things are more effective than the DIY? Obviously, store bought things are easier. They are more standardized. जी They will have some rationale behind them. राइट। So that is obviously there. But even जो हमारे ये DIYs है या जो home care remedies है, अगर आप अच्छे से करो Right. तो even they work quite well. And hair mask is basically a feel good factor. क्या? You know, so वो दोनों में से जिससे आपको आ रहा है आप कर लो. Absolutely. Okay, what is the best time when one should put a mask? Before wash लगाना चाहिए, after लगाना चाहिए, या गीले बालों पे लगाना चाहिए? How does मैं that आपको work? बहुत इंटरेस्टिंग मैं बताती हूँ. हमारी जो हम पढ़ते हैं हेयर के बारे में उसमें हेयर मास्क एग्जिस्ट ही नहीं करता. Okay, that's coming from a doctor. Please note it down. Hair masks are not a part of the education of Which we do. So yeah, hair mask up because frizziness बहुत आ रही है, dryness बहुत आ रही है, तो that's been introduced. It's a means of deep conditioning of your hair. I personally feel you should shampoo your hair, the scalp should be clean, and then you should be doing these things. Okay. Okay, one more question. Lot of people who have oily hair, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि हमको ज़रूरत है हेयर मास्क की और शुड बी अवॉइड? Completely optional. ओके, आपको ज़रूरत लगती है आप करो, आपको ज़रूरत नहीं लगती तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं करोगे तो बाद में बालों में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. नॉट मैंडेटरी एट ऑल. इफ़ यू फील लाइक इट आप करवाइए हेयर मास्क, एंड probably if you're doing a lot of other stuff like dyeing and other it, then probably it comes more into if you're not doing all of that you can easily stay away. सो जो आपके हेयर के प्रोसीजर्स होते हैं जी हाँ. उनका डैमेज कम करने के लिए हेयर मास्क इज गुड. एग्जैक्टली, आई मीन दैट पॉइंट. Cool. Now let's सीधा go to hair fall. Now all of us we also spoke about कि monsoon आ रही है, hair fall happens. What are the most common reasons otherwise of hair fall? सो इसी हेयर फॉल के ना बहुत सिंपल रीजंस होते हैं. आपका हेयर कैसा है, थिन है या अच्छा वॉल्यूम है, सबसे बड़ी चीज़ है जेनेटिक्स. तो ये नहीं कि मेरे बाल कम हो रहे हैं आज ही जाके मम्मी पापा से लड़ रहे हो इतने बैड चीज़ दिए. बट देन दैट इज द ट्रूथ. जेनेटिक्स, उसके बाद आपका न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी हेल्थ. योर हेयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर हेल्थ. राइट. एंड अगर आपको कोई भी इलनेस हुई है, जैसे आपको टाइफॉइड हुआ या आपको कोई सिवियर वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद आपको 3-4 हफ्ते के बाद बहुत हेयर फॉल होगा. जस्ट डोंट वरी, ऑल ऑफ इट इज गोइंग टू कम बैक. Okay, so let's touch upon how much of hair falling is natural. So see, we say 100 hair. Not to worry about. So we say 100 hair in a day. बट अगर आपके लंबे बाल होंगे और 100 गिर रहे होंगे ना, इतना बड़ा गुच्छा बने वो दिखेंगे ज़्यादा. तो दिखेंगे ज़्यादा. And the काम वाली बाई in the morning she'll be saying, the दीदी will be saying, अरे दीदी देखिए आप ये कितने बाल क्या कर रहे हैं. हर रोज And you're a panic. इतने बाल देखोगे. बट जनरली स्पीकिंग, अगर जब आप सो के उठे आपको पिलो पे बाल दिखे या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आपको गाड़ी की सीट के पीछे बाल दिख रहे हैं, सो देन यूजुअली दैट इज अ इशू ऑफ कंसर्न. अब आजकल एक बहुत लेटेस्ट जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत एडुकेट किया गया है मैन को. बहुत सारे यंग बच्चे आते हैं, मैंने ऐसे यंग बच्चे रेंजिंग फ्रॉम द एज टू 16 to 24 कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है. और जब आप पूछोगे हेयर फॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है, बाल एक्चुअली गिर रहे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं यहाँ से पीछे जा रहे हैं. You know, receding. यहाँ receding like people have become very aware about this fact. But it is very normal for men to have receding hairline. Straight is female. जब तक आपको puberty नहीं हुई है आपके straight है. But
फॉर अ मैन यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाना इज नॉर्मल. Okay. तो ये आपके बाल गिर नहीं रहे हैं. Yeah. ये आपका ना हेयर थिनिंग का प्रोसेस हो रहा है. Right. एंड ये नेचुरल प्रोसेस है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल वरी करने की जरूरत है. And in all probability, it's more of a gender issue than gender and age. It's not an issue. It should happen. Okay, it's natural. How So- would a boy look जिसकी बिल्कुल ऐसी हेयर मार्जिन होगी? Okay. You know, so it is natural. You need this kind of hair. Yeah. Right? So that's absolutely normal. And all boys from the age of 15, 60 to 24 थोड़ी रिसेशन होगी. Okay. इवन गर्ल्स में मदर्स आती हैं प्यूबर्टी वाली गर्ल्स की, पहले इसकी इतनी मोटी गुत्त होती थी, अब इतनी सी रह गई है. सो वॉल्यूम वहाँ भी कम होगा. प्यूबर्टी के साथ थोड़ा वॉल्यूम कम होगा. Yeah. दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस. दैट्स नॉट अ डिजीज विच यू आर हैविंग. Okay, since you were touched upon गुथों की बात करते हैं. Now इंडिया ऑल अक्रॉस, आप आई थिंक केरला चले जाइए, आप नॉर्थ इंडिया में आइए, चोटियाँ बनाना, पोनी टेल्स बनाना. आज मे बी स्टिल इट्स मोर ऑफ अ ट्रेंड टू लीव द हेयर ओपन इन एटलीस्ट द बिगर सिटीज, but I'm sure the small towns still there is some charm related to kids and people having their hair tied up. राइट. So how does that damage hair or improve it or help it? Tell us. सी आप हेयर बांध के रखते हो, आप डेफिनेटली ज़्यादा नीट लगते हो. यू नो, Right. it's easier to manage your hair. And for most, hair बांधना is a good idea. Yeah. लेकिन जब अगर आपके hair thin होने लगे, Or even spiritually, a lot of people say that people who do meditation, etc., they should keep their hair tight for different reasons, of course. But that is, I think, a wisdom that has been flowing in India, yes, from ancient times, right? so अगर आपका hair बहुत thin है और आप बहुत टाइट दो गुत यहाँ बांध के रखोगे, Yeah. तो ट्रैक्शन एलोपेशिया में सकता है. अच्छा. सो आप यहाँ पे बीच में एक पिन लगा लो एंड फिर आप गुत बना लो. सो हेयर का पूरा प्रेशर आपके पोनी पे या गुत पे नहीं जा रहा अगर आप यहाँ बना रहे हो. Right. अगर आप पीछे जो कन्वेंशनल चोटी थी वो बना रहे हो, दैट्स वेरी गुड आई थिंक. Absolutely. And I think personally for me, whenever I tie my hair in ponytails, I get a headache. गुड बिकॉज योर बताओ then नहीं even बचपन में भी a choti would not hamper but a pony would. So there might be various reasons. So I think it also goes on person to person. See what is more convenient for you. But irrespective, बहुत tight rubber bands शायद ना use करें, है ना? Be careful about what you are choosing to tie your थोड़ी hair. बेस लगा लो ना, थोड़ा प्रेशर उस पे आ जाएगा. Absolutely. And the softer satin वाले probably the rubber bands rather than a regular rubber band निकाल से कहीं वैसे बाल टूट जाए. राइट. Absolutely. Now let's touch about कि बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट हेयर फॉल पे कैसे होता है. लाइक वी टॉक अबाउट डाइट, वी टॉक अबाउट स्लीप, वी टॉक अबाउट एक्सरसाइज. टेल अस हाउ डज ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट आवर हेयर. सो अगर हेयर फॉल में हम प्रिवेंटेबल कॉज देखें तो डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हेयर हमारी इनर हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है. अगर आप क्रैश डाइटिंग कर रहे हो या आप अपनी सिवियर इलनेस से रिकवर कर रहे हो, आजकल बहुत सारे डाइट फैड्स चल रहे हैं, आप उसके हिसाब से कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स छोड़ रहे हो, तो हेयर फॉल डेफिनेटली होगा ही होगा. Right. Okay, let's talk about supplements now because that is not only something जो personally हम लोग सोचते हैं घर पे ले लेते हैं, but it's also become a huge market out there. So tell us about the regular ones. Collagen है, biotin है, ऐसे supplements are there in the market. There is enough of marketing happening. So much so कि कितनी बार तो हम लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हैं, खुद ही जाके ये केमिस्ट से ले आते हैं. How good is it? कैसे यूज़ करना चाहिए? सी मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं ना, दे से कि मैंने 3 महीने बायोटीन भी खा लिया फिर भी मेरा हेयर फॉल नहीं रुका. सो बायोटीन हैज़ बिकम OTC. बट इसमें इतना इंटरेस्टिंग है कि बायोटीन आपको उतना चाहिए ही नहीं है हेयर के लिए. हेयर के लिए आपको सब मिनरल्स और विटामिन चाहिए. तो अब हेयर में साइक्लिकल विटामिन का कॉन्सेप्ट है. कि आप हर रोज अलग विटामिन लेते हो. देयर आर दीज किट्स विच यू गेट, साइक्लिकल किट्स. सो दैट इज व्हाट इज नीडेड. नाउ जब आप बायोटीन ज़्यादा लेते हो तो उससे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है हमें, हेयर फॉल के पेशेंट्स में हम थायराइड की टेस्टिंग करवाते हैं एंड हम यूजुअली आयरन प्रोफाइल चेक करवाते हैं. अगर आप हाई डोज बायोटीन ले रहे हो जो कि आपके जो ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स आप लेते हो उसमें होते हैं, तो आपका थायराइड की जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आती. सो अगर आप बायोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, यू नीड टू स्टॉप देम फॉर अ वीक बिफोर यू गेट योर थायराइड टेस्टेड. Okay. So not that कि biotin is not enough. Yeah. It might mislead you into thinking कि आपको thyroid problem है.
Right. सो आपके ट्रीटमेंट का ट्रैक ही चेंज हो जाएगा. Very right. So I think let's talk about this. What kind of tests should one do before one starts taking these supplements? And tests लेने के बाद भी what kind of multivitamins which are there which are really important to be taken? So see, all vitamins are really important for hair. And जो हम टेस्ट करवाते हैं, they are usually iron profile and thyroid, which I just mentioned. No? And अभी hair fall में अगर हम देखें, एक biotin and दूसरा minoxidil. You know, so there is a huge anti-minoxidil sentiment in the market now. But I have been using it for now almost 24 years. Okay. जितनी ज़्यादा एविडेंस हमारे पास बायोटीन के लिए, उतनी एविडेंस किसी भी और मॉलिक्यूल के लिए नहीं है. एकदम सस्ता टिकाऊ इलाज है आपके लिए. बट देर इज सो मच मोर विच नीड्स टू बी सोल्ड. जी, सो दैट इज वाई दैट सप्लीमेंट. यू नो, जनरली ये लोगों का होता है कि मिनॉक्सिडिल नहीं शुरू करेंगे, एक बार शुरू कर लिया तो कभी बंद नहीं कर पाएंगे. अगर आपकी प्रॉब्लम जेनेटिक्स है तो आप जो भी ट्रीटमेंट शुरू करोगे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. इट्स सिंपल एज दैट. आपके जेनेटिक्स तो रिवर्स हो नहीं सकते. एंड कुछ लोगों का ये न्यू आजकल है कि मिनॉक्सिडिल इज अ स्टेरॉइड. नो, एब्सोल्युटली नो. Okay. मिनॉक्सिडिल सिर्फ आपके हेयर फॉलिकल के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है. Okay. जिससे कि जो आपका हेयर थिन हो रहा है वो थिक होने लग जाता है. पर मिनॉक्सिडिल से एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, ये मॉलिक्यूल आपके बालों में जमता है. तो आपको लगेगा कि मुझे डैंड्रफ ज़्यादा हो रही है. हाँ. और मेरा बाल शुरू में रफ हो रहा है, विच इज़ एक्सपेक्टेड. तो उसके लिए आपको शैम्पू रेगुलर करना पड़ता है. एंड हम साथ में आपको कुछ मॉर्निंग सेरम्स देते हैं जिससे कि आपका हेयर सॉफ्ट रहे. राइट. सो बेसिकली OTC आप जहाँ तक हो सकें खुद जाके डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन ऑफ सप्लीमेंट्स. गो टू योर डॉक्टर, शो इट to your dermat and let them suggest what is best for you, and I think strictly follow that. That's the safest thing to do. या यू नो, इवन इफ यू हैव टू यूज मिनॉक्सिडिल, अगर आप एक कंसल्टेशन ले लोगे ना, आपकी अलाइनमेंट सेट होगी. Right. ऐसा नहीं मैंने 4 महीने लगाया, फिर मेरे दोस्त ने दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने लगाया. दैट्स नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे. Absolutely. Let's talk about any side effects. Now we have spoken about minoxidil and we've spoken about biotin as well. So is there any side effects that one should be looking at which can happen by taking all these supplements? सप्लीमेंट्स में पर से साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, बट हाँ आपको स्टमक अपसेट एक बहुत कॉमन चीज़ होती है. Okay. तो ऑल द सप्लीमेंट्स आर बेस्ट टेकन इन द मॉर्निंग आफ्टर योर ब्रेकफास्ट. बिकॉज उसके बाद आप चलोगे तो डाइजेशन आपकी अच्छी रह जाएगी. एंड जब आप सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो एक एक करके करो, सो दैट यू एटलीस्ट नो कि आपको क्या सूट नहीं कर रहा. Absolutely. एंड विद मिनॉक्सिडिल very rarely you could be allergic to the product. Okay. So if that is the case, then we have oral minoxidil, but that's a different story. So, you know, for that you will need expert advice. So we're not looking into that right here. Okay. Okay. Now let's talk about. I'm sure we have a lot of audience who specifically wants कि हमें आप ये बता दीजिए हमें नेचुरल डाइट में क्या क्या खाना चाहिए. सप्लीमेंट्स हमने सुने देखे पर हम नेचुरोपैथी में ज़्यादा बिलीव करते हैं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. What do you advise to them कि खाने में what should be one be eating? तो आपकी जो कन्वेंशनल डाइट है ना, जो हमारी, जो मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स लेते हैं, दैट इज द डाइट वॉट विच वी नीड. Okay. यू नो, जैसे आपने कुछ थोड़े बादाम खा लिए, आपने एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, आपने एक कटोरी दाल या पल्स ली, आपने ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर लिया, आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स भी लिए. यू टेक द नॉर्मल डाइट, यू डोंट नीड एनीथिंग स्पेशल. Nice. So you want to take flax seeds, chia seeds, go ahead, do it. Because omega-3 is generally good. Correct. So आपको ना, you just need a normal basic diet which your parents would have been talking about always. Absolutely. So that's what you need. So is it safe to say जैसे पुराने ज़माने में किया जाता था, go back to old recipes. Yes. आप अपनी थाली लगाइए, the थाली should be full. Yes. उसमें सब्जियां भी होने चाहिए, सब कलर के कलर टाइप्स की, सलाद भी होना चाहिए, दही भी होना चाहिए, अचार भी होना चाहिए. But depending upon where you are living, what your you just go back to how your grandparents, great grandparents are eating, and I think that is either. And घर पे खाना बनाइए. Yes, that is the most important. घर पे बनाइए, प्यार से खाइए, प्यार से बनाइए, प्यार से खाइए. रेगुलर बनाइए. So हमारी जनरली डाइट इज वेरी वेरी गुड. Right. Now we have changed it to superfoods, you know. Correct. But हमारे अपने डाइट में बहुत superfoods हैं. अब जो वेजिटेरियंस हैं उनका थोड़ा सा रहता है कि आप प्रोटीन कैसे सब्स्टिट्यूट करो. तो आप अपने आटा में थोड़ा सा सोया पिसवा सकते हैं. Correct. You know, so that would give you regular protein. And बाकी yes, आप राजमा खाओ, आप चने खाओ,
आप टोफू खाओ, पनीर खाओ. So a normal balanced diet is what we are looking at. Absolutely. Okay, now one last question in this segment. Supplements क्या सबको लेने चाहिए? और if I feel नहीं मेरे बाल बड़े अच्छे हैं, मुझे supplements की ज़रूरत नहीं है, so is it good for me not to take or is it mandatory कि सबको लेना ही चाहिए कुछ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं. It's completely optional. But आजकल मोस्टली लोगों का विटामिन डी, B12 कम होता है. So if you feel कि आपका सब कुछ ठीक है, you don't need it. Right. But हाँ, obviously if you feel tired and if you generally feel low on energy, even if you're feeling कि आपके बाल ठीक हैं, so then supplements might be required there. Absolutely. Okay, so now let us talk about treatments. बहुत सारे treatments डॉक्टर आजकल available हैं. You open a place and something new is coming every few months. So tell us something. What are the most popular salon treatments which are currently going on and in trend? See, for salon treatments, we end up seeing only those treatments जिनके बहुत side effects हो रहे होते हैं, right? So I will talk about a very common treatment जो आजकल बहुत popular है, which is the hair Botox. Okay. So this is not same as the Botox which we do for our skin. जी. इसको hair Botox इसलिए बोलते हैं because it just relaxes your hair. Okay. But ये relax कैसे करता है? आपके hair के जो strength giving bonds हैं, उनको completely break करके. Okay. So now you make your decision whether you want to do it or you don't want. You have keratin, you have smoothing, and widely they say कि नहीं बहुत अच्छे हैं, it's very good for the hair, it makes it more manageable. Because see, the look is very nice. Yes. So for 8-9 months the hair looks very good. Yeah. So if you are doing these treatments, तब आपको साथ में कुछ supplements ज़रूर चाहिए होंगे आपके hair health के लिए. Yeah. And then they are going to suggest some conditioners and आपको कैसे ध्यान रखना है. But please don't overdo. And actually क्या होता है जब हमारे hair thin हो जाते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है because frizzy, unmanageable. And उसी टाइम आपका बाल इन चीज़ों से टूटेगा सबसे ज़्यादा. So as I said शुरू में भी अब now we are not at that stage wherein we can say नहीं करना है. Right. We can tell you कैसे करना है. Right. Tell us any long-term damages that can happen by doing these treatments on a regular basis. Yes, hair will become very brittle. Yeah. And जैसे skin is very forgiving. कोई problem होगी within 4 weeks ठीक हो जाएगा. Hair का cycle is 3 years. And if you are at that age जहाँ आपका hair naturally thin हो रहा है, तो वहाँ पे recovery हो सकता है पूरी नहीं भी हो. Okay. So अगर आप procedure कर रहे हो और आपको करवाते ही पता चल रहा है it's not for me, please don't do it. Absolutely. So now let's talk about PRP. Now Dr. Soni Nanda here, she is one of the top few doctors and she's done a lot of work on PRP. She is a specialist if I can say. You also have a publication, Dr. Nanda, on PRP. Yes. So tell us how good is PRP, and of course it's been catching up for the last couple of years. किसे करवाना चाहिए? Give us more details on this. Right. So see, PRP has been touted as the रामबाण. You know, अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हेयर फॉल है, सिर्फ PRP कर लो and I am good. Right? So PRP no doubt is very very effective and very useful. Okay. But it's a very scientific thing to do. So it has to be done properly Okay. by a doctor who knows what PRP is. Yeah. So mostly dermatologists would know that. Yeah. But you know, जैसे अब Training is essential. Yeah. Not just any dermatologist, somebody who's worked. Yeah, so dermatologists would be trained on PRP. But Yeah. अभी आप देखोगे ना salons में हो रहा है, Correct. लोगों के घर में PRP हो रहा है. अब एक आप blood product कर रहे हैं, तो आप खुद सोचो how safe is it to get it done at your place. So PRP is very useful. It is autologous, मतलब आपका blood लिया, उसे centrifuge किया, उसमें से platelets isolate किए. प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर का बहुत रिच सोर्स होता है. Correct. सो उसको आपने इंजेक्ट किया, ग्रोथ फैक्टर्स जो आपका हेयर का थिनिंग है या जो भी शेडिंग फेज चल रहा है उसको रिवर्स कर देता है. Right. तो जनरली 4 to 6 सेशंस यू सी अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट. Right. So we also have a Prohine and a GFC. यस. So in दोनों में difference क्या if you could tell us? सो सी GFC इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट. सो आप इसे सेकेंड जनरेशन PRP बोल सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली इसमें जो किट्स यूज होती हैं वो डिफरेंट होती है. Okay. फॉर द पेशेंट द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. अच्छा. But the kits that we are using are different and GFC में growth factor concentrates और ज़्यादा आते हैं जिससे वो थोड़ा और ज़्यादा effective होता है. Okay, now we're talking more on this. Now जिन लोगों को hair fall हो रहा है, how can they differentiate कि उन्हें GFC करना चाहिए या PRP करना चाहिए या there's something else called hair meso as well. Right. What is best for who?
राइट सो सी ये ना आई थिंक इंडिया में आपको डॉक्टर एक्सेस इतना इजी है और इतना अच्छा है. यू शुड गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, डिस्कस विथ द पर्सन एंड देन डू वॉट एवर दे आर सेइंग. जी हाँ. हेयर ट्रीटमेंट्स में अगर एक कैरेक्टर है ना जो पेशेंट को चाहिए ही चाहिए, जी हाँ. यू नो दैट इज कि वो ट्रस्ट करे डॉक्टर पे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू टेक टाइम. And a very valid point that you have made here, unlike a lot of developed countries जहाँ पे doctor access is not so easy. In India, we are blessed in that fashion कि हमारे पास we have absolute top-notch doctors throughout the country. So do not hesitate, just reach out, go there and get expert opinion on that. Okay, also tell us कि अब hair treatment तो लोग कराते हैं. A lot of people are worried कि उसके बाद हम मेंटेनेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. हाउ डज वन गो अबाउट इट? Right, so see again, अगर genetics की वजह से hair thinning है, some amount of maintenance would be required throughout. Now there's some people who come and say हम तो सीधे transplant करा लेंगे. जी. But you know the interesting part is कि even transplant के साथ भी आपको medical treatment चाहिए होगी. There are no shortcuts in hair whatsoever. Right. अगर आपका फॉल सिर्फ किसी आपकी इलनेस की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या सीजनल है तो वो ठीक हो जाएगा. Right. बट अगर जेनेटिक्स है या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें लंबा चल रहा है तो ट्रीटमेंट लंबा होगा. अगेन यू नो रीच आउट टू अ डॉक्टर, अंडरस्टैंड कि आपको एक्चुअली फॉल हो क्यों रखा है एंड देन टेक इट फ्रॉम देयर. Absolutely. Okay, tell us now, so many people go for, various treatments. Blood test is one thing that is more or less always advised by the doctors. अगर कोई अभी घर बैठे बैठे जानना चाहता हो कि हमें कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए before we can go and meet the doctors, what can you tell them? थायराइड एंड आयरन प्रोफाइल, एंड यू कैन ऑल्सो डू योर विटामिन डी एंड विटामिन B12 बिकॉज वो भी सबके कमी होते हैं. अच्छा, ओके. एंड वेट लॉस से कोई फर्क पड़ता है? बिकॉज देर आर पीपल हु आर हिटिंग द जिम्स, वेट गेन भी हो रहे हैं, वेट लॉस भी हो रहा है, एंड एक्सट्रीमिटीज में हो रहा है इन अ लॉट ऑफ केसेस. व्हाट इज योर ओपिनियन? डज हेयर फॉल अकम्पनी एनी ऑफ देम? यस, अगर आप क्रैश डाइटिंग करके वेट लॉस कर रहे हो हाँ तो डेफिनेटली हेयर फॉल होगा. अगर आप एक साइंटिफिक तरीके से कर रहे हो तो फिर तो आप अपनी डाइट ज़्यादा हेल्दी कर रहे हो. जी. एंड एक्सरसाइज शुड नॉर्मली हेल्प. Correct. So then you should not have hair fall. Absolutely. And so remember, exercise, lose weight, of course, go after your health goals. सब करिए, crash dieting से बचिए as far as possible if you want your hair to remain healthy. As for men and women, how is hair fall different for both? So men में you see more of the pattern baldness, which is कि आपका यहाँ से recession हो गया, यहाँ से कम हो गया. जो it's very common. Men में ये pattern 50% of men have this pattern by 50 years of age and 70% by 70 years of age. Females में hormonal influence ज़्यादा होता है. जैसे अगर आपको polycystic ovaries है, आपका hormones ठीक नहीं है, post delivery fall काफ़ी common होता है, menopause के आसपास hair thinning significant होती है, and that's a long process. That continues. Yeah, absolutely. That's a never-ending process. We should talk about it sometime. Yeah, later करते हैं. Absolutely. Okay, also tell me something. काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि अरे यार मेरी मम्मी को या मेरे पापा को बड़ी hair fall थी. So how much of hair fall is genetic? It depends. The pattern baldness is genetics. Okay. एंड जो बाकी हेयर फॉल है वो आपका अपना वो है. आपने अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखा, आपने डाइट कैसी ली, आप कैसे एरिया में रह रहे हैं, स्ट्रेस कितना है, स्लीप पैटर्न्स. हम पहले जो ये पैटर्न बॉल्डनेस है वी यूज्ड टू सी इट इन 20s. हाँ. नाउ वी आर सीइंग इन 14, 15, 16. एंड आई फील लाइफस्टाइल हैज अ बिग रोल टू प्ले. बिकॉज यू नो पूरी रात जागना, पूरे दिन सोना, सो देयर इज अ सर्काडियन रिदम जिसके हिसाब से हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में. दैट इज ऑल गेटिंग ऑल्टर्ड. So all children also, all the parents who are watching it, please go and tell your children it is cool these days. Yes. You know, all of our friends are up. Yes. We also need to be up. But then as doctor has told us, there is a circadian rhythm that needs to be followed, and uska direct impact is also coming on the way you look. Yes. And hair is, as they say, the crowning glory. Be you a boy or a girl, if you have lovely hair, it adds to your personality, and when the hair starts thinning, you will be the only person who will have immense amount of worries coming out of that as well. Yes. Great. Okay, I think doctor, one more thing that we really need to address is हमारे बहुत सारे मतलब हर can we talk it a year, हर साल कोई ना कोई नया फैड आता है.
बीच में जैसे दांतों की बात करते हैं कभी, सो कभी बीच में सॉल्ट वाले टूथपेस्ट आ रहे थे, अब पर्पल टूथपेस्ट आ रहे. सिमिलर थिंग हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर हेयर ऑल्सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. बीच में अनियन हैड बिकम वेरी कि हाँ अ हेयर ऑयल विद अनियन, घर पे भी DIY रेमेडीज बिकेम सुपर पॉपुलर. आजकल रोजमेरी चल रहा है, राइस वाटर चल रहा है, सो मेनी फैड्स आर गोइंग ऑन. व्हाट इज योर आइडिया ऑन दीज फैड्स जिनके अराउंड लिटरली इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं? सो यू नो यू लाइक दैट नाना जी का ऑयल. हाँ जी. हैंड इवन जब हेयर फॉल होता है आई थिंक लोग प्याज खाते कम है, लगाते ज्यादा है. Correct, उसका जूस निकाल के एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आई हैव सीन इज कि ये सारे ऑयल्स वगैरह आपके हेयर के टेक्सचर को बहुत बेटर कर देते हैं. Okay. सो आई वुड नॉट से डोंट So यूज. even the natural ones, or you're talking about the ones which are available in the market? No, even the natural ones. Okay. So they're all very good conditioners. They are going to improve the texture. Right. And जब आप इतना ऑयल वगैरह लगाकर कुछ कर रहे होगे तो आई एम श्योर आप अपनी थोड़े डाइट वगैरह पे भी ध्यान दे लोगे. Yes. You know, because your focus is there. Correct. So that's how they are working. So what I feel here is if we could combine our treatments Yeah. with these oils, because ये oils का एक mindset ये है कि बहुत safe है, बहुत easily available है, आपने अपने फोन पे ऑर्डर किया आ गया. Yeah. तो आई वुड नॉट से मत लगाओ, बट जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है हेयर के रिगार्डिंग वहाँ दिस माइट नॉट बी इनफ. It might not be the solution, and I think from what you've explained, I'm getting an understanding कि all of this works for sure, but on an external level, internal level जो issues हैं that have to be handled and managed in a different way, and nobody better than your doctor to guide you with that. Great. Okay. Also one very important thing, ये हमारा इंडिया में तो बहुत ही पॉपुलर है ऑयलिंग. सो आई रिमेंबर बचपन से हमारे टाइम में माई नानी यूज टू पुट सरसों का तेल टिल द वेरी एंड, एंड एक्चुअली शी ऑल्सो हैड ब्लैक हेयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एवर. फादर डज इट. Okay, you know. So and of course we have regions in India. South mein coconut oil is very important. We see cooking mein putting in your hair. Locally we have that wisdom that we are using it, those locally available oils. How good do you think is oiling as a activity or as a routine in somebody's life? ऑयल इज अ वेरी वेरी गुड कंडीशनर. Okay. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ऑयल के साथ ये होता है कि फिर वो आपके माइल्ड शैम्पू से हटेगा नहीं. दूसरा, आई पर्सनली फील गॉन आर द डेज ऑफ चंपी. Okay. क्योंकि अब ना हमारे हेयर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है. सबके हेयर थोड़े वीक होते हैं, एंड आप खुद भी देखोगे जब आप चंपी करते हो या मसाज करते हो हाथ में 4-6 बाल तो आ ही जाते हैं. तो हेयर इज डेफिनेटली अ गुड कंडीशनर. आप अगर आपको बहुत डैंड्रफ है तो आप ओवरनाइट मत रखिए जी, बिकॉज डैंड्रफ इज एक्सेस सीबम प्रोडक्शन. लेकिन अगर आपका स्कैल्प बहुत रफ होता है तो आप हल्का सा हेयर एज कंडीशनर लगा सकते हो. जैसे हम बॉडी पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आपके स्कैल्प के लिए ऑयल इज द बेस्ट कंडीशनर, बट प्लीज डोंट ओवरडू इट. एंड मस्टर्ड ऑयल हम मना करते हैं बिकॉज इट इज़ फोटोटॉक्सिक. वी फील कि आप लगाओगे धूप के साथ इंटरेक्ट करेगा. लेकिन as you said, my father has been doing it and it works for him. Yeah. So अगर आपके लिए वर्क करता है तो आप करो. बट दूसरी चीज, it has a very strong pungent smell. हाँ. तो पूरा आप ऑयल लगा के, you know, there were other oil. If you love it, if you love it, that is that big, because I remember You and your colleagues love it. It's more about you will get used to the smell. आपके आसपास के लोगों को अच्छा लगता है वो है do it. But आपका जो कोकोनट ऑयल है और अब इसमें आपको वर्जिन करना है, हर से निकलवाना है, पैराशूट लगाना है, ऐसा गुड कंडीशनर. और वर्जिन का सिर्फ ये फायदा होता है कि वो विंटर में जमता नहीं है, तो प्रैक्टिकली यूजफुल है. बट आप एकदम 10 टाइप्स एक्सपेंसिव ऑयल ले रहे हो और आप सोच रहे हो कुछ मैजिक हो जाएगा. जी हाँ. It might be the case. Absolutely. So I think now we've reached the end, but this is going to be the most exciting part. We'll have a quick rapid fire round, and you don't go anywhere. You have to watch this for sure. So Dr. Nanda, are you ready? Yes. Okay, fine, great. So wash often or not? Yes. Great. Hot water or cold water? Medium. Okay. Oil pre-wash? Oil pre-wash. Yeah. Yes, most definitely. Okay, not post. Pre-wash. Great. What about frizz fix? Conditioner, hair mask. Great. Anti-dandruff? Shampoo every day. Okay. And tight buns? Avoid. Heat tools? Avoid. Rain rinse? Good idea. Good idea. Go ahead. Go walk out into the rain. You must. Okay. Trim needed? Yes. Makes you look neat. Okay. Yes.
and diet boost? Oh, most definitely. Most important. Great. So I think that's about it, and it's been a lovely session. I hope all of you audiences have really enjoyed because we tried to pack in as many things as we could. And अब इस session के बाद आप लोग monsoon के लिए तो definitely ready हैं. And do get in touch with Dr. Nanda. The phone numbers are also being displayed down. Get in touch with them if you have any queries further and get your consultation ASAP. Thank you so much, Doctor. Yeah, most welcome, Divya. And one thing which you must have if you want good hair is patience. All right. Right? Yeah. Okay. Thank you and have a great day.